Ma'am, please start. Okay, good evening, everybody. I'm here to teach you your DNHE course. Who has joined today? Yesterday was not there, so I can give my introduction, brief introduction. I'm Dr. Gurjeet Kaur, HOD, Medical Lab Technology Department, Chandigarh University. I'm going to teach you about your DNHE course. We have started yesterday with the first lecture only, and that was the introductory lecture and about the food, health, and nutrition, and how these all are associated actually, all how they are linked between. And now we can start with the more detailed idea. Like yesterday we have discussed in a broader way. Now we'll discuss into little bit into a detail also. Okay. Now we have to see that our food. Yesterday we have discussed that we have the component of the lipid, proteins, carbohydrates, and water content, and other vitamins and minerals. Now we have to divide these into something, some another category, like what are micro, macro, and micro. Okay, micronutrients and the macronutrients. As the name indicates itself, that the macronutrients are the nutrients which we need in a abundant, and the micronutrients those which we need in a smaller, little bit a smaller quantity. I mean, if even if we take the little bit small quantities, micronutrients, so that would be sufficient. But some of the macronutrients which we need in the bulk quantity, like yesterday we have this. मैम एक मिनट के लिए मैं रोकना हाँ जी, चाहूंगा, हाँ सर. एक मिनट के लिए. एक पलक थिन करके एक बच्ची है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट ना करें और स्टॉप हाँ जी. ब्रॉडकास्टिंग हाँ या. प्लीज. आपके लिए ये वीडियो उपलब्ध रहेगी, आप लोग इसको फेसबुक पेज से देख सकते हैं. इससे जब आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो जो मेरे सामने इमेज आ रही है वो सिर्फ आपको ही देख पाऊंगा मैं, और जो मुझे और कार्य करने हैं वो मैं संपन्न नहीं कर पाऊंगा. प्लीज, नहीं तो फिर मेरे को वैसे आउट करना पड़ेगा. पलक पलक थिंड करके है बच्चे. हाँ जी, yeah, she is doing something. Yeah, screen broadcast is also visible to me. That's also recording. Please, students, I mean, I really wanted to request that this lecture is चलिए for मैम, you people, मैम for मैंने the उनको students only. कर दिया. Yes, प्लीज आप ठीक स्टार्ट है. करिए. Okay, sir. Okay, that's fine. Now we are continuing with the macronutrients and the micronutrients only. Macronutrients are those which we need in a bulk quantity, and the micronutrients which we can have in a little bit quantity, and that will do. Okay, but both are necessary and both have their own important functions. Okay, and that doesn't mean that we don't need that also. Micronutrients we need in a little bit quantity, like vitamins, minerals, hormones, which works as a hormones. Okay, but macronutrients now we have discussed in a broad way. Now we'll discuss in a detail. Now this time we are taking the first category, that is called the macronutrients. So what are macronutrients? First we'll discuss. Macronutrients are carbohydrates, fats, lipids, and the water. And the micronutrients are what? They are the vitamins and the minerals. Okay, now we'll start with the macronutrients. And the first macronutrient is the broad category is a carbohydrate. Okay, then what are the carbohydrates? Basically carbohydrates एक broad way में हम इसको सारा को sugars ले लेते हैं, ठीक है, जो मीठी चीजें हैं, that's sugar, but that's not the actually fact. That's the non-sugary, non-sweety things are also the carbohydrates. Main carbohydrates are what? The starch, sugars, and the fibers. The main three categories, broad categories of the carbohydrate is a macronutrient, and the three categories of the carbohydrates, which we are going to discuss here: the starch, and the sugar, and the fibers. And the starch is what? Like स्टार्च आपने देखा है कि एक स्वीटी नहीं होती है, ठीक है. Sugars are the sweet category of the carbohydrate. Starch are non-sweety categories, and the fiber जो है that's the thing जो आपका एक एक खाने का एक बल्क को इंक्रीज करती है, उसके एक अपने फंक्शंस हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइबर आप लोग आजकल बहुत पढ़ते हैं, लाइक वी हैव टू have the nutrients but along with the fibers. आप इतना सा nutrient अगर आपको चाहिए, इतना सा amount of the carbohydrate, I mean they are needed in a very low quantity, but that doesn't mean उससे फिर क्या होगा कि एक satiety की feeling नहीं आती आपकी.
आपकी भूख जो एक फीलिंग होती है ना, सटाइटी, भूख मिटने वाली, वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। फिर वो भी कंटेंट है। कल हमने डिस्कस किया था सटाइटी फीलिंग्स वाला और द फाइबर्स का। अब हम मोर डिटेल में जा रहे हैं एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है। सो जो मेजर अमाउंट है हमारा, जो सबसे बड़ा इसका बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स है, हम उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट yesterday we have discussed and now the categories we are discussing. Now we are coming to the metabolism of the carbohydrates. And metabolism is a one term जो आपको पता चल जाता है कि जिसमें काफी सारी टर्म्स आती हैं, like we take the food, ठीक है, ingestion and then digestion and then absorption and then circulation, absorption and all, energy availability. Yesterday we have discussed about the energy levels also, low levels also, with growth and all. ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं. I don't know how many of you were already there, but anyhow. And metabolism is actually divided into the catabolism and the anabolism. Catabolism is a term which is uh, which is actually defined as like when we take the food, the breakdown of the food is also. ठीक है, एक हमने food लिया, we used to take the complex foods, then the breakdown, I mean the digestion occurs with various type of enzymes, with various types of the alpha enzymes and the various types of the biles from the mouth to the esophagus to the liver biles and then the stomach and then the intestine. This all process goes okay in the digestion part. That is called the catabolism, when the more and more complex molecules, they are broken down into these simpler ones and more simpler ones and the further more simpler ones. So that is called the catabolism. But after that, some new form of the nutrients which is formed, which is then get absorbed into your body, that is called the anabolism. And catabolism plus anabolism both collectively called as a metabolism. Okay, now what is about the metabolism of the carbohydrates? What happens after the metabolism of the carbohydrates? That means carbohydrates, they give the energy. Yesterday I told you that the carbohydrates are the instant source of the energy. So after the metabolism, obviously that generates the energy. These are the energy giving molecules. And the next one is the protein sparing action. Okay, this protein sparing action is mentioned in your book. That what does that mean? Protein sparing is what? Like देखो, अब क्या है कि हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी के लिए हमारे पास सारे के सारे बैलेंस्ड फूड है, उसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं एंड विटामिन हैं. बट अब हम देखेंगे कि जो प्रोटीन्स है उसके ज्यादा एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं एंड एक रेगुलेटरी फंक्शंस हैं. तो अगर प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को व्हेन दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग द एनर्जी, देन जो एक्चुअल फंक्शन है वो प्रोटीन का रह जाएगा, जो बॉडी बिल्डिंग है और जो फंक्शंस हैं वो रह जाएगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि प्रोटीन्स जो हैं उनकी मियर वेस्टेज है, जो उनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बॉडी बिल्डिंग वाला, वो रह जाएगा. सो वी शुड हैव, इसका मतलब ये नहीं होता जैसे हम लोग वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं, वेट बॉडी बिल्डिंग करते हैं, और सम ऑफ दी, ये मिथ है एक जो मैं रियली वांटेड टू मेक यू क्लियर अबाउट, कि जब हमने करना है तो लोग ना जाते हैं, जिम जाते हैं एंड दे स्टार्ट हैविंग द प्रोटीन्स. प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में लेंगे, लिपिड्स को छोड़ देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को भी छोड़ देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं. ठीक है, बट उससे क्या होता है, उससे एक नुकसान होता है. जैसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग हो जाती है, आफ्टर सम टाइम वो ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लेना शुरू बंद कर दिया, लिपिड्स भी हम तेल घी ये सब बंद कर दिया. ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग दी प्रोटीन्स कि उसी से बॉडी ग्रोथ होगी, उसी से हमें एनर्जी मिलेगी. बट नो, ये एक मिथ को तोड़ने के लिए एक ये वर्ड है विच इज वेरी मच I mean well defined in your IGNO books only, that is called the protein sparing action. Now you can get into uh, you'll get to know that the when you take the carbohydrate na, that give you the instant source of the energy.
बाकी जो आपके फैट्स हैं वो तो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है ही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटीन भी हम साथ में लेंगे, सो प्रोटीन लेने से जो हमारे ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग फंक्शन है एंड द फंक्शनल है, एंजाइम्स का पार्ट है, वो वाला पार्ट चलता रहेगा, और जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। सो डोंट स्टॉप हैविंग द कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स. You should have some amount of a carbohydrates, you should have some amount of the lipids too, so that एक आपकी stored energy भी रहे और एक instant source of energy भी आपको provide हो to do the body functions. जो रूटीन में आपको बॉडी ग्रोथ के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो चाहिए हमें एनर्जी, वो लेवल आपका रहे। और इसमें उस एनर्जी लेवल से क्या होगा कि आप प्रोटीन्स को स्पेयर कर देंगे टू डू द मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस, टू डू द मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो प्रोटीन है वो अपने एक्चुअल फंक्शन करेगा। अगर आप लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देंगे तो प्रोटीन से ही एनर्जी लेंगे और प्रोटीन के बाकी फंक्शन रह जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी मच क्लियर कि आपको लिटिल अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड सम अमाउंट ऑफ द लिपिड्स एंड सम अमाउंट ऑफ द विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर को साथ में लेना है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, to leave the protein for more important function for which the protein is actually meant for, okay, because proteins के और बहुत सारे functions है, it's a part of the genetic material, it's part of the genes, it's all the enzymes are proteins, इसको बहुत important functions करने होते हैं, सारे एक सारे enzymes जो proteinaceous in nature होते हैं, ठीक है। अब है आगे utilization of the fats। अब क्या होगा कि अगर आप लिटिल बिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, समटाइम्स अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स इफ यू आर नॉट टेकिंग, देन आपके फैट्स इनटू द एक्शन आ जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्विंग और एनी काइंड फॉर एनी रीजन आपने खाना नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो आपका दूसरा अमाउंट एक आ जाता है, तो फैट्स आ जाते हैं इन फंक्शन, सो दैट दे विल प्रोवाइड द एनर्जी, सो दे बोथ कैन स्पेयर द प्रोटीन्स फॉर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। हमने प्रोटीन को डिस्टर्ब नहीं करना, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन के लिए स्पेयर करके रखने हैं। सो डोंट स्टॉप, आई मीन डोंट स्टॉप हैविंग द टोटल अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये मिथ बिल्कुल ही है कि बिल्कुल शुगर मत लो, बिल्कुल लिपिड्स मत लो, बिकॉज एक आपको मैं और बताती हूँ, जो ज्वाइंट पेन्स हैं आजकल शुरू हो गई है ना, ये हमारा जो हम बिल्कुल सैचुरेटेड फैट लेना छोड़ दिया है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। और दूसरा फूफा का ये दिक्कत है कि वो हमने 20-30 सालों से ले रहे हैं, और हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना ब्लड का, उसको उसने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। सो दैट्स व्हाई आजकल ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल, जो हार्ट प्रॉब्लम से बचाते हैं, बट वो जॉइंट प्रॉब्लम्स एंड अदर थिंग्स को, ब्लीडिंग फैक्टर्स को उन्होंने कम करना शुरू कर दिया इन द नॉर्मल फंक्शंस। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी अगर अभी कभी भी आप कहीं भी जाके लेते हैं, तो बिल्कुल स्टॉप नहीं करना कार्बोहाइड्रेट लेना, बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है लिपिड्स लेने, ठीक है। और बिल्कुल भी ये नहीं है कि देसी घी खाना बंद कर देना, सैचुरेटेड फैट्स आई एम टॉकिंग टू हैव एवरीथिंग, ठीक है। एंड नाउ ये मैंने शायद आपको क्लियर कर दिया, प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द फैट यूटिलाइजेशन, ये दो फंक्शंस हैं जो आपको आ सकती हैं एग्जाम में ऐसे डिफाइन करने के लिए, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का रोल पूरा दिखाना है, लिखना है इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट यू कैन गो टू, ठीक है। एंड नाउ द फाइबर फंक्शन इज बेसिकली, अच्छा अब आ गया, अब पहले हमने क्या डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट का एक तो स्टार्च होगी, शुगरी फंक्शन है, एंड द फाइबर्स। अब आपकी बुक में ना इग्नो वाली में, ठीक है, फाइबर के फंक्शंस बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किए हुए हैं, सो दैट दिस इज अन इम्पॉर्टेंट, द रोल ऑफ द फाइबर एंड द फंक्शंस ऑफ द फाइबर, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसके 3-4 फंक्शन हैं, ठीक है। बेसिकली जो फाइबर है वो ना, मैं आपको बताती हूँ, एक सीड है, सपोज आपकी बुक में ना एक दिया हुआ है जर्म, वीट का सीड, ठीक है। सीड के 3 पोर्शंस दिखाए हुए हैं, सबसे आउटर पोर्शन जो होता है वो होता है ब्रैन, और मिडल वाला पोर्शन होता है एंडोस्पर्म, और सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है जर्म। जर्म उसे इसलिए कहते हैं कि जब हम उसको सॉइल में डिप करते हैं, तो आफ्टर सम फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर, वाटर एंड टेम्परेचर की भी, ठीक है, और लाइट की भी, तो वहां से जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट अंदर वाला छोड़ के और सबसे आउटर वाला पोर्शन छोड़ के जो बीच वाला एंडोस्पर्म होता है ना, उससे भी हम बहुत सारी चीजें, रिफाइंड फ्लोज बनाते हैं, जैसे सूजी सुना होगा आपने, सेमोलिना सुना होगा आपने, ठीक है। ये इन सेंटर वाले पोर्शन से बनती है। सो आउटर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ एवरी सीरियल,
एंड हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द व्हीट सीड, व्हीट जो कनक गेहूं जो भी आपका है उसकी सीड को लेके सोचते हैं। तो वो ब्रेन है, जो आउटर वाला पोर्शन होता है वो हमारा ज्यादा से ज्यादातर क्या होता है, वो फाइबर होता है अगर हम पल्सेस सीरियल्स खाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फाइबर के फंक्शंस क्या है, सबसे पहले और सिंपल वाला फंक्शन आप याद रखिए कि सटाइटी, सटाइटी होती है जो भूख को मिटाना। हम थोड़ा थोड़ा बाकी चीजें तो ले ही रहे हैं, लेकिन अगर हमें कार्बोहाइड्रेट इतने ग्राम चाहिए, इतना सा चाहिए, और उसमें जितने जितने भी पोर्शन है, तो स्टाइटी वाली फीलिंग, हमें फिलिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी। दैट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट विच आई हैव टोल्ड यू येस्टरडे, कि एक साइकोलॉजिकल भी हमारा फूड के साथ जो रिलेशन होता है ना, उसमें वो सटाइटी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। बड़े सारे मैंने बताए थे। यस, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग बेटा? ओके। तो सटाइटी वाली फीलिंग है, उसमें क्या होता है, सटाइटी वाली फीलिंग से पता क्या होता है, एक्चुअली जो फाइबर का जो आउटर वाला पोर्शन है या ब्रांड पोर्शन है, या सिंपली आप फाइबर का वर्ड भी यूज कीजिए, उसमें क्या है कि उसमें ना एक वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर बहुत होती है फाइबर में। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लो, इवन इफ यू आर टेकिंग द प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स, उनमें वाटर की एब्जॉर्प्शन की का फंक्शन ही नहीं है। सो वी हैव अ फाइबर, we should have a good amount of a fiber with the other nutrients. Sorry, I was about to see that आपका ये देख रही थी मैं आपको, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सटाइटी वाली फीलिंग हमें तभी आएगी जब हम फाइबर लेंगे अलोंग विद द ऑल न्यूट्रिएंट, ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज उसमें क्या है, एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन वाली वाटर एब्जॉर्ब करेगा आपका फाइबर। सो उसमें उस वाटर फाइबर उससे क्या होगी, एक तो सटाइटी वाली फीलिंग है, एक दूसरा आपकी एलिमिनेशन, जो एक्सक्रीशन है, बाउल मूवमेंट्स हैं आपकी, वो इजी हो जाएंगी। और ये जो पाइल्स वाली प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि स्टार्ट हैविंग फाइब्रस फूड्स अलोंग विद द बैलेंस्ड फूड्स, ठीक है। ये नहीं है कि वो लेना छोड़ देना आपको, बट फाइबर का अमाउंट ज्यादा करना है और वाटर इनटेक ज्यादा करनी है। और फाइबर क्या करेगा, एक तो आपको स्टाइटी की फीलिंग देगा, ठीक है, और आप लिपिड्स या नॉन वेज लेना छोड़ सकते हैं उसमें। और दूसरी बात, उसमें वाटर का कंटेंट है, एब्जॉर्प्शन अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, जिससे एलिमिनेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, देन आफ्टर द बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से बिग इंटेस्टाइन से एलिमिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वो उस केस में पाइल्स भी ट्रीट कर सकते हैं। आप पाइल को एज अ डिजीज लो, पर नॉर्मल में भी आपकी बाउल मूवमेंट है कि वो ज्यादा हार्ड हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सक्रीशन से भी तो रिलेटेड है ना डाइजेशन, अगर एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगी तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ, तो एक दूसरी बात ये हो जाती है कि प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस हो जाती है। दूसरी बात, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि पाइल्स का एग्जांपल दिया, पाइल्स जो होती है ना, अगर प्रोलॉन्ग रहती है ना आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, ठीक है, तो दैट कुड बी मीन कन्वर्टेड इनटू द कोलोन कैंसर, ठीक है। एक से बाद दूसरी के बाद तीसरी चीज जो होती है वो सारी कोलोन कैंसर में भी हो जाती है अगर आप उससे। व्हाट हैपेंड दैट ये कोलोन कैंसर वगैरह, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे ही आप संभाल सकते हो, सो आपको uh, उसको कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा हम डायबिटीज, तीसरा हम CHT, ऐसी सी डिजीजेस जो कि जेनेटिक भी हैं, डायबिटीज 2, डायबिटीज 1 एंड द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, दे आर जेनेटिकली इनहेरिटेड बट वी कैन कंट्रोल देम बिकॉज इससे मैं बताती हूँ, जो सबसे पहला वाला पॉइंट है ना फाइबर इनटेक का, सटाइटी वाला, क्योंकि आपको पता है ये जो CHD होती है और डायबिटीज होती है, इनमें ना क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, क्रेविंग होती है मीठा खाने की, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इनटेक होनी शुरू हो जाती है। बट अगर हम क्या है कि अगर हम फाइबर कंटेंट ज्यादा लेते हैं, फाइबर कंटेंट से क्या होगा, फाइबर फाइबर ज्यादा लेंगे, आपको फिलिंग वाली फीलिंग आएगी, आई मीन सटाइटी वाली, कि भूख है, मन भर गया हुआ है, पेट भरा हुआ है, और ऊपर से अगर हम पानी पीते हैं तो भी फीलिंग होगी आपकी। तो आपकी वो जो क्रेविंग्स है ना फॉर अदर फूड्स, फॉर जंक फूड्स एंड फॉर द स्वीट फूड्स, वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। एंड दिस हैपन्स एक्चुअली, आप कभी करके देखिए, ठीक है। अगर आप फाइब्रस फूड ज्यादा लेते हैं, इवन हैविंग फाइब्रस के फूड्स की बात और भी है कि अगर आप सैलड भी खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अगर आप शाम को गुड अमाउंट ऑफ अ सैलड लेते हैं, गुड अमाउंट ऑफ अ सैलड या फ्रूट्स या पपाया, ये सब चीजें लेते हैं, तो उसके बाद आपकी फिलिंग है, आपको खाना
डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में भी आपको कम लगता है. लंच तो यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ फूड इन अ लंच. दैट्स एक्चुअली मैंडेटरी फॉर टू मेंटेन द एनर्जी लेवल्स फॉर द डे टू डे रूटीन लाइफ एंड ऑल. ओके. एंड नाउ द थर्ड पॉइंट ये था कि प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज. फर्स्ट था हो गया सैटिस्फैक्टरी, दूसरा हो गया एलिमिनेशन जो फाइबर्स के हैं, थर्ड इज हो गया जो प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस लाइक मेजर डिजीजेस हैं, कोलोन कैंसर हो गया स्पेसिफिकली, डायबिटीज होगी, सीएचडी होगी, और इसके अलावा जो एसिडिक रिफ्लक्सेस होते हैं स्टमक में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये सब भी ठीक हो जाती हैं इससे, फाइबर कंटेंट को ज्यादा करने से, और बिकॉज वाटर इनटेक ज्यादा हो जाती है जिससे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और आपकी एक्सक्रीशन का भी सिस्टम ठीक हो जाता है. So this is important to have the fiber and the include having along with the फाइव जो हमारे बैलेंस डाइट के कंपोनेंट हैं उनमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा सो दैट वी कैन मेंटेन द वाटर. उसके बाद सोर्सेज क्या है इसके. सोर्सेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरी ग्रेन, अदरवाइज तो आपको वैसे फाइब्रस फ्रूट्स एंड ऑल सारे सैलड्स एंड ऑल, बट अगर पल्सेस की बात करें जिसमें से आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे, प्रोटीन्स का आउटर पोर्शन नहीं उतारना है. आउटर पोर्शन उतार के कई बार हम क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ही फाइन और रिफाइंड के चक्कर में पड़ जाते हैं. उसमें क्या है कि उसका फाइबर कंटेंट डिस्टर्ब हो जाता है. हम प्रोटीन तो ले लेते हैं बट जो फाइबर कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें मिल जाते हैं, मतलब फाइबर कंटेंट है वो हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है. सो हमें अपनी डाइजेशन अलोंग विद एक्सक्रीशन का भी, एलिमिनेशन का भी ख्याल रखना है. सो उसके लिए वी नीड गुड अमाउंट ऑफ अ फाइबर कंटेंट. ठीक है, जो मैंने आपको एक सीड का बताया, द आउटर ब्रांड कंटेंट, वी डोंट वांट टू रिमूव दैट, कीप दैट. उसके बाद अब हमने फाइबर के साथ हमने वाटर का इंपॉर्टेंस देखी कि वो वाटर को कंटेन करने की और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है, जिससे एलिमिनेशन में, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम नहीं आती है और हेल्प करता है. सो दैट मीन्स कि वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल. ठीक है, तो वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड में. एंड देन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है water. As we all know that we contain more than 75% of the 70 to 75% of the water content, and it's made up of a hydrogen and oxygen. ठीक है, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. दिस यू शुड रन, ये आ सकता है वाटर के फंक्शंस में. इसमें दो चार पॉइंट्स आपको मिनिमम लिखने हैं. फर्स्ट पॉइंट तो हो गया एसेंशियल, दूसरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बॉन्डिंग से बना है, तीसरा इनऑर्गेनिक हो गया ये. ठीक है जी, ये तीन चीजें लिख के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, मोर देन 70-75% ऑफ द वाटर इन आवर बॉडी. चौथा, अब आएंगे इस बायोलॉजिकल पे. ठीक है, ये अब एक और पॉइंट आ गया, इसको हम ना मिनरल की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं. हाउ? मिनरल्स आर वाइटामिन्स एंड जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम, जिंक एंड ऑल. फिर वाटर को कैसे लेते हैं? वाटर का तो वैसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट इसका एक तो फंक्शन आ गया फाइबर्स के साथ. ठीक है, दूसरा ये जो इनऑर्गेनिक नेचर है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कंसिडर इट एज अ into a mineral category. Because of these inorganic compounds, these elements, we consider this or inorganic compound as a mineral category. Because एक तो ये भी हो गया. अब इसके फंक्शंस पे आते हैं. ठीक है, तो वाटर का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन सिंपल आप अपने दिमाग में याद रखिए कि एक तो ये मीडियम है, हमारी बॉडी में एक मीडियम है, लाइक एक लिक्विड है जो फ्लो करता है थ्रू एवरी ऑर्गन. ठीक है, और बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, हर बॉडी फ्लूइड, वेदर इट्स अ ब्लड, वेदर इट्स अ लिम्फ, वेदर इट्स अ यूरिन, वेदर इट्स अ सलाइवा, डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट, पर्सपिरेशन, इन सब जो वाटर का जो कंटेंट है मेजर इज अ वाटर. वाटर कंटेंट सबसे मेजर है, और इसका मतलब जब पूरी बॉडी में इतना एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, दैट मीन्स यस्टरडे आई टोल्ड यू, हमने कल कुछ डिस्कस किए थे. दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर की रेगुलेशन में द वाटर प्लेज मेजर रोल इन दैट. बिकॉज सिंपल सी बात है, गर्मियों में देखिए, व्हेन यू फील हीटेड अप, सो व्हाट यू डू टेक, आपकी बॉडी क्या आपको कहती है देखने में, आपकी इंटरनल फीलिंग ही क्या आती है कि हैव अ वाटर. गर्मियों में चलो एक नॉर्मल नहीं है तो थोड़ा कूल वाटर पीते हैं, बट
it gives you some satisfaction, it gives you feeling of some coolness. So body temperature low हो जाता है, then you feel little bit calm. और जब भी वैसे भी अगर आपका फीवर भी होता है तो आप एक वो इवन आउट फ्रॉम आउटर साइड आप एक पट्टियां रखते हैं पानी की, या फिर इंटरनली पानी लेते हैं, एंड इफ यू गो ऑन पासिंग द यूरिन आल्सो, देन इट एक्चुअली फंक्शंस इन लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। और अगर कोई भी फंक्शन है, इवन इफ कोई भी टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, बिकॉज जो भी फीवर है, दैट इज, फीवर इज नॉट अ डिजीज, एक्चुअली फीवर इज एन इंडिकेशन ऑफ सम अदर डिजीज, बट उस अब टेम्परेचर को तो लोअर करना ही करना है ना, बिकॉज ऑफ अदर डिजीज ऑल्सो, ताकि बॉडी एक आपकी नॉर्मल आए, सो यू शुड फील लिटिल बिट कंफर्टेबल, बिकॉज व्हेन यू हैव द फीवर यू डोंट फील कंफर्टेबल, बिकॉज यू डोंट फील लाइक आपकी एक्टिविटी लेवल्स जो लो कर सकते हैं उसमें काफी जब हायर हो जाता है, देन तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो टू द डॉक्टर एंड हैव अ मेडिसिन, बट तो फॉर लिटिल बिट हायर टेम्परेचर, आई मीन लाइक 98.4 से 99 हो गया, 100 हो गया, तो स्टार्ट हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ वाटर. Good amount of water passing the urine can help you remove the toxins from your body and then maintaining their body temperature. ठीक है. और तीसरी बात, अगली बात ये है कि this is a universal solvent. Universal solvent का मतलब ये है कि anything you put into that and you dissolve, it gets dissolved. Salt, sugar salt, ठीक है, any other color, okay, like sand and all, some जो भी आपके जो पोलर कंपाउंड्स है वो नहीं होते, अदरवाइज एवरीथिंग गेट्स डिसॉल्व्ड. आप अपना सारा फूड, अपना सारी कुकिंग, अपने सारे कोल्ड ड्रिंक्स, अपने सारे स्क्वैशेस, अपने सारे जूसेस, उन सब का बेस, इवन द फ्रूट अगर आप लेते हो, फ्रूट का जूसेस है, पाइनएप्पल लेते हो, इवन द एप्पल लेते हो, उसके जो जूसेस है उसमें भी मेजर कंटेंट वाटर है. सो वाटर को हम रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है. River of life because it's a medium all over the body and it's a major content of the body and it has a very vital roles to play in our body, ठीक है. और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी हो गया, दिस इज वेरी कॉमन. और दूसरी एक और पॉइंट है, लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स कहाँ है? जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं, उसमें जितने भी लिक्विड हैं, सच मानिए कि उसमें भी लिप जो वाटर है, उन लुब्रिकेंट्स का एक मेजर पार्ट है, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो, दिस डजंट वर्क एज अ मेजर. यस, हेलो, एनीबडी वांट्स टू टॉक? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. या Ma'am, दीज आर as सम you said क्वेश्चन. earlier, हाँ जी, हाँ ma'am, जी, as you said earlier that if the person is having diabetes, हाँ so जी. that in that case, the person always feels craving to eat some sweet. यस, Ma'am, what is the role behind it? फाइबर. मैंने आई वाज डिस्कसिंग द रोल. आपकी ना कुछ डिस्टरबेंस है पीछे, ठीक है. I was discussing the role of the fibers in the diabetes. Okay, diabetes में लोगों को actually craving होती है फूड की, and moreover उनको sugary amount, मीठा खाने की craving बहुत होती है, ठीक है. और वो कुछ ना कुछ लेते हैं. तो अगर हम, मतलब ये नहीं है कि टोटली डायबिटीज वी कैन क्योर, बट वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, अगर हम उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं. सो है स्टार्ट हैविंग दी फाइबर्स. अगर आप फाइबर लोगे ना, आपकी फीलिंग होती है, स्टाइटी की फीलिंग आ जाती है. गॉट इट? स्टाइटी की फीलिंग आएगी तो काफी हद तक वो जो क्रेविंग होती है फूड की, ठीक है, और मीठा खाने की, वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है. बिकॉज जब फीलिंग है, पेट भरा हुआ है, फिर आपको फीलिंग ही नहीं आएगी. और पेट भरने वाली फीलिंग कहाँ से आती है? फाइब्रस फूड से. जो भी आप फाइब्रस फूड्स खाएंगे, सैलेड्स खाएंगे, या फिर जो मैंने कहा है कि सीड्स खाएंगे, जैसे लोग चने खाते हैं, ठीक है, सीड्स हैं, अलसी खाते हैं, क्योंकि उनका बाहर का जो ब्रेन है, दैट्स अ फाइबर. और जब आप उसको खाते हो तो आपको पानी बहुत पीते हो, आप पानी पीने से आपको फिर वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो भरा भरा पेट वाली फीलिंग आती है, विच इज कॉल्ड एज सैटिस्फाइटी, ठीक है. उससे उनकी क्रेविंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि उनकी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी मीठा खाने को. बिकॉज जब वो स्टमक भरा होता है ना, तो आप क्या फील करते हो खाने का? यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग इफ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड योर स्टमक. गॉट इट? आई एम नॉट गेटिंग इट वेदर आई हैव सेटिस्फाइड इट और नॉट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो सिर्फ Ma'am, पेट then भरे वाला होता है ना, भरना. जैसे आप कुछ खा लेते हो तो आपके सामने कुछ भी yes, रखा जाए, ma'am. मिठाइयां रखी जाए, कुछ भी रखा जाए, तो आपको नहीं है. आपको फूड कब अच्छा लगता है? जब आपको भूख लगी होती है. तो आपका जो सिंपल सा फूड होता है वो भी आपको टेस्टी लगता है, होता है कि नहीं? ठीक है ना.
तो Yes, जब ma'am. भूख लगती है तो आप कुछ भी खाते हो, और अगर आपकी भरी हुई फीलिंग है, मतलब पहले से भरा हो, तो यू डोंट फील लाइक, अगर आपको कोई कुछ कहे कि आप खा लो जब आपका पेट भरा हुआ है, तो हमें क्या होता है कि फाइब्रस फूड देने से हम वो सैटिस्फाइड वाली फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि डायबिटीज वालों की भूख पे कंट्रोल या मीठा खाने पे कंट्रोल हो जाता है, सो दैट दे कैन कंट्रोल देयर क्रेविंग्स। एक्चुअली मैं ये ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ डायबिटीज की, वो तो नहीं हो सकता, ठीक है, बट ये क्रेविंग्स को और फूड से हम उनकी शुगर लेवल को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर ने तो कुछ नहीं करना, फाइबर ने तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग देनी है आपको सैटिस्फाइड वाली, सो दैट यू शुड नॉट हैव एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो आपकी वो जो शुगर वाली क्रेविंग्स है उनको रोकेगा, बिकॉज डायबिटीज ने शुगर वाली चीजें नहीं खानी होती है, और डायबिटीज में ही क्रेविंग होती है, ठीक है ना। और ऐसे ही सीएचडी में होता है, वो भी फिर लिपिड्स एंड ऑल जंक फूड्स एंड तीखा सा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब भरा होगा दे डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, सो दैट दे कैन कंट्रोल देयर डाइटरी हैबिट्स टू लिटिल बिट, बिकॉज डायबिटीज में और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ये सारी जो डिजीजेस हैं दे आर ऑलरेडी रिलेटेड विद द डाइटरी हैबिट्स ओनली, लिपिड्स शुगर्स इनका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ओवर ना खाएं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि अमीनो एसिड्स का रोल क्या है प्रोटीन्स में। अमीनो एसिड्स का रोल प्रोटीन्स में नहीं होता, ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर है एक्चुअली, मेरे को लगता है ये मैं कल कंटिन्यू करूंगी, बट मैं ये क्वेश्चन एक आपको अभी दे दूं आंसर, जिससे क्या है कि प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, एक तो प्रोटीन आपको टोटली लगता है एक प्रोटीन है, लेकिन वो एक छोटी छोटी यूनिट्स के साथ बाइंड करके बना होता है, विच इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, नेक्स्ट अमीनो एसिड है, और दो अमीनो एसिड्स एक ज्वाइन करते हैं एक बॉन्ड से, विच इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी। एक पेप्टाइड बॉन्ड है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ पे अमीनो ग्रुप होता है, एक तरफ पे पॉजिटिव बॉन्ड बनता है, एक तरफ पे नेगेटिव बॉन्ड बनता है, और जब भी दो अमीनो एसिड्स बनते हैं तो वहां पे पार्शियल एक तरफ पॉजिटिव बॉन्ड आ रहा होता है, एक तरफ नेगेटिव बॉन्ड आ रहा होता है, नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, पार्शियल पार्शियल, तो उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। इस तरह से काफी 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 बॉन्ड्स बनने के बाद एटलीस्ट जब 20 डिफरेंट काइंड ऑफ या सिमिलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड बाइंड कर जाते हैं, देन दे गिव राइज टू अ वन अमीनो एसिड, वन प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जब वेरियस काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, देन दे गिव राइज टू वन प्रोटीन। एंड हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, टू कैटेगरीज में हम लेते हैं अमीनो एसिड्स को, एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पे आने वाली थी, आई हैव टेकन द एग्जांपल, एक्चुअली क्वेश्चन देखा मैंने इसलिए आई हैव स्टार्टेड, बिकॉज मैं जब प्रोटीन्स पे अभी कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर को कंप्लीट करके देन आई एम रियली गोइंग टू टीच यू दिस अबाउट द प्रोटीन्स ओनली, ओके। एंड अभी हम ये करने वाले हैं प्रोटीन का जो है पार्ट, ठीक है। ये अभी 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 हम वाटर पे थे, यूनिवर्सल एंड लुब्रिकेंट के ऊपर आ गए, ठीक है ना। सो अब हम वाटर कंटेंट, फाइबर एंड वाटर कंटेंट की हमने इंपॉर्टेंस देख ली है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इनको अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा प्रोटीन स्पेयर नहीं हो पाते हैं, वी हैव टू स्पेयर द प्रोटीन फॉर अ मोर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, सो वी शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, एंड ओवर भी नहीं करना है, सो दैट ऑब्वियसली विल गेट वेट अगर हम करते हैं तो, ठीक है, खाते हैं तो ओवर वेट भी होता है, ऑब्वियसली वी शुड हैव सम गुड अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट ओवर नॉट लेसर, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास हम कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें हमारे पास वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा कंटेंट होता है वाटर का, वी शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, अच्छा मिल्क में थोड़ा सा और कम हो जाता है, बट मिल्क इज गुड ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, सो वी शुड हैव। अच्छा, उसके बाद आते हैं सीरियल एंड पल्सेस, इनमें हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट में वाटर कंटेंट होता है, बिकॉज दे आर द ड्राइड वन, सीरियल्स एंड पल्सेस दे आर ड्राइड वन, सो इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ही लीस्ट होता है, बट फाइबर्स बहुत होते हैं। अगर आप सीरियल एंड पल्सेस लेते रहते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो वाटर कंटेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज इनमें फाइबर कंटेंट बहुत होता है। फाइबर कंटेंट में अब वाटर एब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, एंड फाइबर जो है वो हमारी स्लाइटी फीलिंग, एंड ऑलरेडी एक्सप्लेन सो मेनी फंक्शन ऑफ द फाइबर्स, सो ये सब कैपेसिटी होती है, सो वी शुड हैव सीरियल एंड पल्सेस टू, एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क
वो भी बहुत लेने हैं बिकॉज उनमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत होता है, ठीक है। एंड दूसरा, वाटर का मेन जो फंक्शन है, एक बफरिंग कैपेसिटी होती है, बफर होता है, और एक मीडियम होता है जो मैंने पहले डिस्कस किया। जितने भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड ऑल, बाकी जो भी हम लेते हैं उसमें इतने सारे फंक्शंस, आई मीन वो इतने सारे केमिकल रिएक्शंस, ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो होना होता है ना, वो सारा का सारा मीडियम जो है दैट इज अ वाटर कंटेंट। और वाटर कंटेंट भी होता है, और दूसरी बात ये भी होती है कि जो वाटर कंटेंट है उसमें, और जो केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं ना, उनमें से भी कभी आपने देखा कोई कोई रिएक्शंस होते हैं एंड देन एंड प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ H2O का भी एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, कभी ज्यादा मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, दूसरा 4 5 2 4, उसमें से भी वाटर कंटेंट। सो जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें भी इनबिल्ट कॉन्टिन्यूसली होता रहता है वाटर कंटेंट, और द मीडियम ऑफ रिएक्शंस भी वाटर कंटेंट होता है, और जो साइड वाइज भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें भी वाटर कंटेंट प्रोड्यूस होता रहता है। सो वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल। दीज आर वेरियस फंक्शंस, इनको आप एक लिस्ट वाइज करके, व्हेनेवर देयर वुड बी अ फंक्शन ऑफ फाइबर्स और वाटर की इंपॉर्टेंस है, सो यू कैन राइट दीज फंक्शंस, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू, अब हमने क्या है, कार्बोहाइड्रेट का लिया था। कार्बोहाइड्रेट में विच वी हैव डिस्कस द स्टार्च, ठीक है, एंड मेन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में, और मेन शुगर एंड द फाइबर का कंटेंट इसमें ज्यादा था। आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वट एवर इज गिवन इन योर बुक्स ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली जा रही हूँ, वहां पे जो ज्यादा डिस्कस किया हुआ है वो ज्यादा कर रही हूँ, जो कर, सो दैट वी कैन हैव अ गुड अमाउंट, ताकि बुक्स में यही कुछ दिया हुआ है, सो उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, बुक से बाहर तो आने से रहे। सो हम उसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो वहां पे है। अब इस वाले चैप्टर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर था कार्बोहाइड्रेट में, उसमें इसमें इस वाले चैप्टर में ना सबसे ज्यादा फाइबर्स एंड वाटर कंटेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, और जो फूड्स थे जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है वो सब डिस्कस किया हुआ था। नाउ वी आर कमिंग टू द प्रोटीन्स, लाइक आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग लिटिल बिट बिफोर अबाउट द अमीनो एसिड्स, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनको हमने येस्टरडे आई टोल्ड यू, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, दूसरे हमारे फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है जो एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि जो फंक्शनल प्रोटीन्स है विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंजाइम्स, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो जितना भी डाइजेशन है, जितना भी बॉडी के फंक्शंस है, नॉट इवन अ डाइजेशन, सो मेनी अदर फंक्शंस, एंजाइम्स आर नेसेसरी। लेकिन अगर हम डाइजेशन से ही लेके चलते हैं, फूड की डाइजेशन से, तो एक भी अगर एक केमिकल रिएक्शंस होता है ना, अगर वहां पे एक कैटालिटिक एजेंट विच इज एन एंजाइम इज अ प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। कैटालिटिक एजेंट कौन से होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। सपोज हमारे कार्बोहाइड्रेट के ही हो गए, ठीक है। लिपिड्स को डिसॉल्व करने के लिए कौन से लाइपेजेस आते हैं, लाइपेज इन एन एंजाइम, एंजाइम है वो लिपिड्स को डिसॉल्व करने के लिए है, बट वो लाइपेज है क्या एक्चुअली, दैट्स अ प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। एंड वो है क्या, एक कैटालिटिक एक्शन, कैटालिटिक एजेंट, जो कि जो कि लाइपेज जो कि लाइपेज है, और जो लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो खुद प्रोटीनेशियस इन नेचर है, ठीक है। और वो एक कैटालिटिक एजेंट है जो उस रिएक्शन को कैटालिटिक एजेंट की तरह उसको आगे फर्दर डायरेक्शन में लेके जाएगा, और जो भी उस रिएक्टेंट के फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे, और कैटालिटिक एजेंट एज सच बाहर आ जाएगा। और वही कैटालिटिक एजेंट एक और रिएक्शन में एज ए कैटालिटिक एजेंट, मतलब कैटालिटिक एजेंट ये है कि जो सिर्फ स्पीडिंग अप और इनिशिएशन और स्पीडिंग ऑफ द रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड्स हो, या कुछ भी हो, बट जो कैटालिटिक एजेंट है वो सारे के सारे प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। सो इसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रोटीन्स है उनका एक फंक्शनल पार्ट होता है, जो कैटालिटिक एजेंट्स हैं ये फंक्शनल प्रोटीन्स में आते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी है, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी है, स्ट्रक्चर है, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, बेसिकली सबसे जो स्मॉलर यूनिट है उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इंटरनल ऑर्गेनेल्स की, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स जो हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक सेल्स होती हैं, सेल्स में भी प्रोटीन्स हैं, फिर उन सेल्स के आगे टिश्यूज बनते हैं, फिर काफी सारे प्रोटीन्स हो गए, टिश्यू से आगे फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आगे फिर हमारी ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर काफी सारे ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी बनती है। सो प्रोटीन जो है, एक तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो गए, और दूसरे कौन से हो गए, फंक्शनल प्रोटीन्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू एज ए एंजाइम्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट एज ए एक्ट करते हैं कैटालिटिक एक्शन।
तो हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उनको हम होते कौन से हैं, उसके जो मेन है, जैसे मैंने वाटर का बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन नहीं होता, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, ये बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं इसमें, पर बेसिकली इनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन अमाउंट गुड अमाउंट में होती है प्रोटीन्स में। इसीलिए तो जब हम आई मीन किडनी डिजीजेस होते हैं तो प्रोटीन्स बंद कर देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं ये वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो दिक्कत करते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जो कि बेसिकली इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं, अमीनो एसिड्स, व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं अमीनो एसिड्स, अब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करेंगे। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स फिर 2 कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, दो मेजर 2 कैटेगरीज में आ जाते हैं ये, एक होती है एसेंशियल कैटेगरी और एक होती है नॉन एसेंशियल कैटेगरी। अब ये एसेंशियल कैटेगरी, इसका नाम कैसे पड़ा, एसेंशियल कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं कि कुछ अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो तो हमें फिर रेडीली अवेलेबल है होते ही हैं, बट उनमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं है, सो दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बट कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, ठीक है, आवर बॉडी इज नॉट एट ऑल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच वी एक्चुअली नीड फॉर स्ट्रक्चरल एंड फॉर फंक्शनल, ठीक है, फॉर फंक्शनल यूनिट्स एंड फॉर वर्क, आई मीन जो एंजाइम्स हैं उनके इंटीग्रल पार्ट्स हैं वो अमीनो एसिड्स, या फिर जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनके इंटीग्रल पार्ट्स हैं वो वाले प्रोटीन जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। सो व्हाट वी डू, वी हैव सम गुड फूड्स, वी हैव सम प्रोटीनेशियस फूड्स जिनमें हमें वो मिलते हैं, ठीक है, जैसे सम आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन, मिथ्योनिन है, ठीक है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन्स, वेलिन्स है, हिस्टिडाइन, ये ऑल दीज आर एक्चुअली एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 9 होते हैं, ठीक है, ये सारे, और जो हम फूड से लेते हैं फिर वो हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती है, दे आर कॉल्ड द एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड वी नीड इट एक्चुअली। इनमें से कोई एक भी अमीनो एसिड अगर हमारा कम हो जाए ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज अमीनो एसिड डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं करती है एंड दैट वुड लीड टू वेरी डेंजरस डिजीजेस समटाइम्स। अगर तो थोड़ी सी कमी है तो थोड़ी है, बट उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत एंड बहुत अगर ज्यादा 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 एग्जैजरेट होती है ना, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ना संभालें कोई भी डेफिशिएंसी, ठीक है, अगर हम प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन बोल देते हैं, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन को हम बोलते हैं, तो प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन में क्या होता है कि बेसिकली कुछ ना कुछ पूरा का पूरा प्रोटीन नरिश नहीं होता है, उसमें सम अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कोई कमी हो जाती है, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड की कमी हो जाती है, और हर अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर रोल है, ठीक है, लाइक मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के साथ हमारा जो एक ट्रिपल बॉन्ड है उसमें क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम लुकिंग एट द मिथ्योनिन अमीनो एसिड। मिथ्योनिन अमीनो एसिड जो है वो एक जो ट्रिपलेट कोडोन होता है ना, हेरेडिटरी हमारा AUG, 3 कोडॉन आते हैं तो एक मिथ्योनिन होता है, और मिथ्योनिन जब आता है तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब जब हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। और अगर हम बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, अगर हम गुड फूड नहीं लेंगे, गुड अमीनो एसिड्स वाला जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट ना हो, तो वो क्या होगा कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो इनिशिएट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और वो इनिशिएट ही नहीं हो पाएंगे, वो अमीनो एसिड्स ही नहीं बनेंगे, वो एंजाइम्स का पार्ट ही नहीं बनेंगे, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। और जो प्रोटीन्स हैं उसी इसीलिए वो जो अब आप लिंक अप कर सकते हो पीछे जो मैंने बताया था ना अभी आपको, प्रोटीन स्पेयरिंग, सो अब आपको पता चलेगा कि प्रोटीन्स के तो बहुत और इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं रादर देन जस्ट प्रोवाइडिंग अ एनर्जी लेवल। वो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको लिपिड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट प्रोटीन आपको गुड अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। तो आई थिंक जो ज्यादा हो गया एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पे। Tomorrow we can continue with the more important functions of the proteins. I'll make you understand tomorrow. आज हमारा सिर्फ प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, कैसे बनते हैं, और एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, 9 एसेंशियल होते हैं एंड 13 आर नॉन एसेंशियल। और एसेंशियल वो वाले प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं
which are not produced in our body, which we have to take from outside, from a very good amount proteinaceous food, and non-essential amino acids which we can produce in our body. तो और वो भी नेसेसरी होते हैं, बट अब हम उनको नॉन एसेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है जी. एंड विद दिस I'll stop it here. We'll continue it tomorrow, ठीक है जी, with the more important functions of the proteins only. I'll explain about the protein synthesis. Okay, because I don't know कि मेरी साउंड मुझे कहाँ से आ रही है, ठीक है. So I'll explain both, because अगर मैंने आज प्रोटीन कंटिन्यू किया तो I have to leave in between, so more important रह जाएगा. I'll start with the more good functions of the proteins and the protein synthesis and functional protein, structural protein, so that I can finish it in. आज मैं शुरू नहीं करना चाहती हूँ because उससे फिर बीच में रह जाएगा फंक्शन, ठीक है जी. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you जी. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. बहुत सारे बच्चे आज प्रथम में बैठे हुए हैं. Thank you. मैं आपको जानकारी कल की वीडियो है वो अवेलेबल है, हाँ जी. इसे देख सकते हैं. Yes. और इसलिए हम आपको बताएंगे कि तो हमें शेड्यूल्ड पहले 3 बजे की थी, उसको अभी 5 बजे किया था. ड्यू टू पावर फेलियर हमें करीब लेट हमने इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कल मैम रहेगी 5 to 6. हाँ जी. 5 to 6 ही रहेगा. सभी बच्चे 5 to 6 करिए. हाँ जी सर. एक्चुअली थोड़ा सा मेरा लेक्चर है, कई बार वेबिनार आ जाता है तो फिर मुझे दिक्कत है, तो इवनिंग में मैं कोई नहीं रख रही. विजेता जी आप ऑफ कर दें. So actually I have to हाँ जी मैम बोलिए मैम आपको. हाँ जी सर. एक्चुअली क्या है कि मेरे वेबिनार की प्रेजेंटेशंस 1-2 आ रही हैं, आज भी थी, सो मेरे को फिर थोड़ा ऑड लग रहा था कि मैंने मना कर दिया. 5 से 6 वाला ठीक है. बच्चे मेरे ख्याल हाँ जी बिल्कुल. 5 to 6 इट्स कूल. इवनिंग में कोई ज्यादा होता नहीं है. आई कैन टीच इट टू एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी 5 से ठीक है जी. थैंक यू सर. थैंक यू.